وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغرب اور ہمارے حالات میں بہت فرق ہے. ہمیں لاک ڈاؤن کے دوران غریب طبقے کی بڑھتی مشکلات کو بھی دیکھنا ہے. لاک ڈاؤن میں اس لیے نرمی کی تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے. کہا کہ ہمیں کیسز میں اضافے کا خطرہ لاحق ہے. دوسری جانب معیشت کا مسئلہ ہے. ہم نے 10 لاکھ لوگوں کی رضاکار فورس تیار کی ہے تاکہ وہ انتظامیہ کی مدد کر سکیں. وزیر اعظم عمران خان کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب. کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ اس سال ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. اگلے سال پوری دنیا کے لیے معاشی طور پر بڑا چیلنج ہوگا. معاشی معاملات پر دنیا کے ممالک کو مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا. G20 ممالک کی جانب سے قرضوں میں ریلیف کا اعلان کیا ہے. پاکستان جیسے ممالک عالمی قرضوں کی وجہ سے صحت پر زیادہ خرچ نہیں کر پا رہے. In Pakistan we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. So when we locked down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. And when you're talking about 25 million workers, you're talking about 25 million families. And actually it has affected round about almost 120, 150 million people. And these 120 and 50 million people face stark poverty. Unless the men or the women who were working, unless they work, they cannot feed their families. So what we did was, and I'm very proud of my government, we came up with this cash transfer program. And we touched 15 million families. So far, we have touched 15 million families with cash transfers. And this is what's mitigated the effects of the lockdown. But this is only a short-term solution. So therefore, despite the rising cases in our country, we have decided to go and ease the lockdown. We have started to open up our businesses, construction industry, so that people can find employment, because there's no way the government can give handouts to so many people. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بھی اس ملاقات میں موجود تھے. DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر منصوبہ بندی اسد عمر, اس کے علاوہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے. سندھ حکومت نے مساجد میں شب قدر کی عبادات, ختم القرآن کی محافل اور نماز عید کے اجتماعات کی اجازت دے دی ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی سمیت صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ جب بڑے پیمانے پر مجمع لگانے کی اجازت دے دی گئی تو نمازوں پر پابندی لگانا درست نہیں ہوگا. عید کی نماز میں کورونا کی 20 نکاتی SOPs پر سختی سے عمل کرایا جائے گا. پنجاب میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام 544 مزارات کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. داتا دربار, دربار پاک پتن سمیت تمام دربار کھولنے کی اجازت دی جائے گی. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ تمام مزارات پر قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا. نئے SOPs آنے تک مارکیٹ اور مساجد میں موجود SOPs کی سختی سے پابندی کرائی جائے. پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کا پنجاب میں شہروں کے درمیان فوری طور پر بسیں چلانے کا اعلان. انٹرا ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ GT روڈ پر 20% کرائے میں کمی, سیٹ بائی سیٹ بسیں چلائیں گے. موٹر وے پر SOPs کے تحت کرائے میں رعایت نہیں دی جائے گی. موٹر وے پر بسوں میں 2 سیٹوں پر ایک مسافر بٹھایا جائے گا. صوبائی وزراء نے مذاکرات میں ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل کرتے ہوئے بسیں موٹر وے کی بجائے GT روڈ پر چلانے کی پیشکش کی تھی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عید پر دکانیں کھلی رہیں گی. قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اجمل وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا پھیلنے کی وجوہات کو نظر انداز نہ کیا جائے. اندازہ نہیں کہ کورونا وائرس کب تک رہے گا, اب ہمیں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ جینا ہے.
शब कदर की तलाश में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर आज मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक अबुल हसन, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी, जबकि लाहौर से जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, क्या इसमें वो जो रूह परवर मनाजिर हमें देखने में आते हैं 27वीं शब को, क्या वो देखने में आ रहे हैं? क्या माहौल है? जी बिल्कुल, मुसलमान आज 27वीं शब को जो खुसूसी इबादत करते हैं शब कद्र की तलाश में, और रमज़ान मुबारक की जो आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शुमार होती है, तो आज चौथी ताक रात है जिसमें मुख्तलिफ मसाजिद में SOP के तहत खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया की जामा मस्जिद थानवी में मौजूद हूँ और यहाँ पर SOP पर अमल दरामद करते हुए फासलों के साथ नमाजी मौजूद हैं, और वो पहले जैसी रौनक उस तरह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद हैं। और आज खुसूसी तौर पर आए हैं। इस मस्जिद में ख़वातीन का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी तरावी की इस नमाज में शरीक हैं, और आज की शब जो है वो मुसलमान जाग कर शब कद्र की तलाश करेंगे। और जिस महीने जिस रात के लिए कहा गया है कि यह 1000 महीनों से बेहतर इबादत की रात है, तो आज मुसलमान इससे मसरूफ़ रहेंगे। जी तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। लाहौर का रुख करेंगे, जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा आज की शब के लिए लाहौर में क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? जी, आज लाहौर में भी मुल्क भर की तरह शब कदर को मनाया जा रहा है और यहाँ पर अक़ीदत-ए-एहतराम से लोग बहुत बड़ी तादाद में मसाजिद में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हम मस्जिद शोदा में यहाँ पे माल रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर पिछली दफ़ा और हमेशा यहाँ पर इतना रश हुआ करता था कि मस्जिद से बाहर भी सफ़ें बिछाई जाती थीं। लोग बहुत बड़ी तादाद में इस रात पे यहाँ पर आते थे। एक खुसूसी बात यह है कि लाहौर में अक्सर मसाजिद में 27वीं की रात को कुरान ख़त्म किया जाता है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। खुसूसी तौर पर दुआएं की जाती थी और उसके बाद 3 दिन तक जो है शबीना की यहाँ पर तलावत की जाती थी। 3 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म किया जाता था। इसलिए इस दफ़ा जो है कोरोना की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है। मसाजिद में वो तादाद नहीं है जो रवायत के मुताबिक यहाँ पर हुआ करती थी। लोग आए हैं, बड़ी तादाद में हैं, SOPs पर अमल हो रहा है। पुलिस के बाकायदा यहाँ पर नफरी मौजूद है जो हर नमाजी को मास्क पहनाकर अंदर जाने दे रही है। ठीक है, जाहिद शेरवानी, लाहौर से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है मुख्तलिफ मसाजिद में। इरशाद कुरैशी रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रावलपिंडी में क्या माहौल है इरशाद? जी, जहाँ रावलपिंडी में भी आज चूँकि 27वीं की रात है और इस रात का बहुत इंतज़ार होता है। इस वक्त मैं उस रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर रावलपिंडी की बड़ी 2 मसाजिद मौजूद है। मरकज़ी जामिया मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है। और अब ये सूरत हाल है कि पहले इस जगह को सजाया जाता था, मसाजिद को सजाया जाता था, महफिल होती थी और सहरी तक ये महफिल होती थी, नमाज तरावी अदा की जाती थी, उसके बाद ये महफिल शुरू हो जाती थी और सहरी तक ये महफिल जब रहती थी यहाँ पर सहरी करवाई जाती थी। बहुत सारी तादाद, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते तो रोज़ा रख के यहाँ से जाते थे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। चंद एक मसाजिद हैं कि जहाँ पर आज महफिल का जो एहतमाम किया गया है, लेकिन बड़ी मसाजिद में भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। चंद लोग आएंगे, मुनासिब फासले के साथ अपनी इबादत करेंगे। ज़्यादातर लोग जो घरों में इबादत करेंगे और वो जो पहले जोशो खरोश होता था वो अब इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा मसाजिद के बाहर, और ना ही वैसा जोशो खरोश नहीं है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे पिंडी से। जाहिद शेरवानी लाहौर से और तारिक अबुल हसन हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। और जिस तरह के जिक्र हुआ कि आज रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है, शब कद्र की फजीलतें बयान करते हुए अल्लामा कौकब नूरानी का कहना है कि कुरान खुद इस रात को 1000 रातों से अफजल करार देता है। मुसलमानों को इबादत और रब को राज़ी करने के साथ साथ मखलूक की भी नाराज़ी दूर करनी चाहिए। बिल्कुल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अल्लामा कौकब नूरानी ने कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि इंसान खुद में मुस्तकिल तब्दीली लाए। ये जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, ये रातें भी माशाअल्लाह क्या कहा जाए कि इनकी फ़जीलत जब ख़ुद कुरान बयान फरमा रहा है कि इनमें से एक रात है जो शब कद्र यानी कद्र वाली रात है और वो 1000 महीने से बेहतर है।
1000 महीने के साल बनाएं तो 83 बरस 4 महीने बनते हैं। इस एक रात में जो इबादत की जाएगी वो 83 years and 4 months से ज़्यादा सवाब वाली होगी। अब कितनी ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। हमने सिर्फ ये नहीं करना कि आज की रात या मुमकिन शब क़दर जाग ली और उसके बाद फिर हमारी हरकतें आदतें वही। क्या हमने अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, जिसका हम पर हक़ है उसको राज़ी किया? क्या हमने ट्राई किया कि हम रूठे हुओं को मना लें? क्या हमने अपने घरों में मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश की? नहीं। तो फिर मुझे बताएं, हम इस रात को जाग के क्या पाएंगे? हम अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी करें, क्योंकि रब की रज़ा रब के बंदों की रज़ा में है जो उसके प्यारे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि मसाजिद कमेटियाँ मुसलमानों की सहूलत के लिए ताक रातों में मसाजिद को खोल दें। सिंध हुकूमत रमज़ान के बाकी अय्याम में इबादात में रुकावट डालने से बाज रहे। JUI के रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान ने मुख्तलिफ मकामात पर ख़त्म कुरान और इफ्तार की तक़ारीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का दोहरा किरदार सामने आने के बाद उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, लिहाजा सिंध हुकूमत मसाजिद की बंदिश, नमाज़ों और जुम्अतुल मुबारक के इज्तिमात पर पाबंदी से बाज रहे। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए भरपूर जोशो खरोश से इबादात की अदायगी करें। जियो न्यूज़ पर चलने वाली एक फुटेज पर JUI के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जियो न्यूज़ की जानिब से वाक़े पर फौरी मुआफ़ी और तहक़ीक़ात का ऐलान खुशाइंद है। अल्लाह ताला मुआफ़ी को कबूल फरमाए। अपने एक बयान में राशिद सुमरो ने कहा कि हम समझते हैं कि इस बारे में कोई दो राय नहीं कि कादियानी इस्लाम के एलानिया दुश्मन हैं और कारकुनान में इस वीडियो के वायरल होने पर गम और गुस्से की लहर दौड़ी थी। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई कोताही नहीं होगी। राशिद सुमरो ने कहा कि हम मुआफ़ी का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि पुष्ट पनाही करने वाले किरदारों को सामने लाया जाए। राशिद सुमरो ने कहा कि अच्छे और सेहतमंद माहौल में बैनुल मसालिक गुफ्तगू खुशाइंद है। इन मुबाहिसों का मकसद तखरीब हो तो उसकी क़त्अन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। भारतीय फौज की जानिब से नकियाल सेक्टर में LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग से गांव में 3 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मोर्टर और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार को दफ्तर खारिजा तलब किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार से LOC पर फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। नैब लाहौर ने ईद उल फितर पर तमाम ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के लिए हाई टी का इंतज़ाम किया है। नैब के एलामिये के मुताबिक ये फैसला खैर सगाली के जज्बे की रिवायत बरकरार रखते हुए किया गया। नैब हवालात में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान को हाई टी और गुलदस्ता पेश किया जाएगा। पहली मरतबा जुडिशल रिमांड पर कैंप और कोटलाक पर जेल में मौजूद नैब मुल्ज़िमान को भी गुलदस्ते भिजवाने का फैसला किया गया है। नैब लाहौर का कहना है कि माजी में मारूफ सियासतदान भी दौरान हिरासत ईद के दिनों में नैब की सहूलतों से मुस्तफीद होते रहे। जज्बे खैर सगाली के इक़दामात नैब की इंसानी हमदर्दी के ज़ामिन हैं। तफ्तीश और तहक़ीक़ात के मायार पर कभी समझौता नहीं किया जाता। मुल्क में कोरोना वबा के फैलने के बाद मुखय्यर अफराद और फलाही तंजीमों की जानिब से मुस्तहकीन में राशन की तकसीम जारी है। मुसीबत और मुश्किल की इस घड़ी में इसारो कुर्बानी का यह जज्बा जिंदा कौमों की निशानी है। मुसीबत में दूसरों की मदद करने वालों को सलाम। पेशावर से नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा देखना हो तो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिक अफराद की इमदाद करने वाले अफराद और इदारों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि लॉकडाउन की वजह से माशी मसाइल के शिकार अफराद की मदद खूब अच्छे अंदाज में की जा रही है। अभी 700 बंदों का ये पैकेज बनाया हुआ है ताकि ये कोरोना में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनको हम घर के दहलीज पर ये पहुँचाएंगे। फलाही इदारों की खवातीन भी मुस्तहिक घरानों को राशन देकर गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहने देने में अपना किरदार खूब निभा रही हैं।
یہ ان فیملیز کے لیے ہے جو مانگ نہیں سکتے، یہ ان فیملیز کے لیے جن کے ذرائع آمدنی نہیں ہے۔ زندہ قوموں کی یہی پہچان ہے کہ وہ کڑے سے کڑے وقت میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بن کر دوسروں کے لیے باعث تقلید بن جایا کرتی ہیں۔ کیمرامین طارق علی کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ سندھ حکومت نے عدالتی حکم کی آڑ میں سحری تک دکانیں نہ کھول کر تاجروں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ موقف سامنے آیا ہے چیئرمین بزنس مین گروپ سراج قاسم تیلی کا۔ سراج قاسم تیلی کہتے ہیں سندھ اور وفاقی حکومت کی سیاست کی وجہ سے تاجر برادری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پورا ملک کھلا رکھنا اور کراچی شہر کو سحری تک بند رکھنا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہیں بھی دکانوں سے اوقات بڑھانے سے منع نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے سندھ حکومت چاند رات تک دکانیں کھولنے کی اجازت دے، یہ کہا گیا ہے سراج تیلی کی جانب سے۔ یہ بھی کہا کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نمازیں ادا کرنے کی اجازت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر سی پی این ای عارف نظامی نے جی نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میر شکیل الرحمان کی حراست کی مذمت کرتے ہوئے آئندہ صحافیوں کی حراست روکنے کو وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ اس لیے میں کہہ رہا کہ میں جیو میں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب کے اور میر شکیل الرحمان کے والد صاحب کے بڑے تعلقات تھے۔ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سال 2 مہینے سے اوپر جیل میں، آج کے جیل اسپتال میں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ شبلی فراز کے ہوتے ہوئے ایک سب سے بڑے پاکستان کے صحافتی گروپ کا، اس کی کوئی بھی غلطیاں ہوں، میر شکیل الرحمان کی 100 غلطیاں ہوں جن کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ان کو جیل میں ڈال کے 2 مہینے کے بعد بھی اس کا کوئی مداوع نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کا نمبر 1 جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ کوئی صحافی جو ہے وہ پابند سلاسل نہ ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحافتی سرگرمیوں کے واسطے انڈر اریسٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کس لیے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک ان کے بعد الزامات کا تعلق ہے، ان کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، واقعی اگر کوئی لیگلی بنتی ہے۔ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلا برادری سمیت صحافتی تنظیموں نے آزادی صحافت پر تازہ ترین وار کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ کراچی میں جنگ بلڈنگ کے باہر صحافتی تنظیموں اور جنگ جیو سی وی ایس کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت آزادی صحافت اور میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آزادی گلی میں لگے احتجاجی کیمپ میں سابق رکن صوبائی اسمبلی نشاط ضیاء بھی پہنچے اور میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ سابق سیکرٹری پی ایف یو جے خورشید عباسی اور سابق سیکرٹری پریس کلب علاؤدین خانزادہ نے بھی جنگ جیو ورکرز کی آواز سے آواز ملائی۔ آج میر شکیل الرحمان صاحب جو ہے وہ نیب کی حراست میں، پرائیویٹ پراپرٹی کیس 34 سال پہلے، اس میں ابھی تک کوئی ان پر کیس قائم نہیں کیا گیا، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے میر صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ وقت نہیں رہا تو وہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ شرکا سے سیکرٹری جنرل اپنک شکیل امین کانگا، جنرل سیکرٹری دی نیوز یونین دارا ظفر اور جنرل سیکرٹری جاوید پریس یونین رانا محمد یوسف نے بھی خطاب کیا اور جنگ گروپ ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین فرحان الیاس کے ساتھ محمد قسیم سعید، جیو نیوز کراچی۔ میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف جنگ جیو دی نیوز کے ورکرز کا راولپنڈی میں جنگ آفس کے سامنے احتجاج جاری۔ جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی کا عید کے روز بھی احتجاجی کیمپ جاری رکھنے کا اعلان۔ آزادی صحافت پر قدغن کے خلاف راولپنڈی میں صحافیوں اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کا احتجاجی کیمپ جاری رہا۔ مقررین کا کہنا ہے کہ جیسے میر شکیل الرحمان کا حوصلہ پابندی سلاسل رہ کر پس نہ ہوا، اسی طرح احتجاجی کیمپ میں بھی موجود ایک ایک شخص پختہ ارادوں کا حامل ہے۔ آج 70 دن ہو گئے ہیں میر صاحب کو گرفتار کر رکھا ہے اور ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایویڈنس بھی پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، وہ جنگ کی نرسری سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ قصور ہے میر شکیل الرحمان صاحب کا کہ وہ
हुक्मरानों के सामने सरबसुजूद नहीं हुए, उन्होंने अपना कलम झुकने नहीं दिया। जब इस आजाद मीडिया को पाबंदे सलासिल किया जाता है तो ये ईवान में बैठे हुए बेवफा एक जुम्बश लब से एक लफ्ज निकालना गवारा नहीं करते। चेयरमैन जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी नासिर चिश्ती ने ऐलान किया है कि ईद के मौके पर भी एहतजाजी कैंप लगाकर आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। जियो को जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप कई हफ्तों से जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी कैंप में शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए।